Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are healed and healthy at your home. So we are again back with another video from class 11th, chapter number 4, Animal Kingdom. Students, before this video, I had explained you about the basis of classification on which the animals have been classified. So now we are going to learn about the classification in animals. Kingdom Animalia is further divided into different phylums, namely Porifera, Salentrata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. So we are going to learn about all these phylum in this chapter. Classification in animals. What are the characteristics features of kingdom Animalia through which you can decide that the particular organism is belong to this category? All animals belonging to kingdom Animalia are multicellular eukaryotics. Means their body cell organization, level of organization is multicellular. They have heterotrophic mode of nutrition. Means उनका nutrition कैसा होता है? Heterotrophic. They depend on others for their food. Means they could not prepare their own food. Next is almost all animals are mobile. All animals are mobile means they are movable and they move about in search of food, shelter and for other needs except for sponges and corals. Sponges and corals are not mobile in nature. They are sedentary. It is most diverse group than the plant kingdom. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था एनिमल किंगडम जो होता है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है. सो द फर्स्ट फाइलम इज पोरीफेरा. पोरीफेरा को हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं स्पॉन्जेस. दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स. कैसे होते हैं? मराइन होते हैं और asymmetrical होते हैं. Means their body is not divided into two equal parts. These are primitive multicellular organism. Primitive मतलब सबसे पुराने हैं and have cellular level of organization. Sponges have a water transport और canal system. Sponges के पास क्या होता है? Water transport होता है और canal system होता है. Water enters through minute pores. आपने कभी स्पॉन्ज देखा भी होगा. स्पॉन्ज होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स रहते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑस्टिया. ठीक है. स्पॉन्जोसिल इज द कैविटी विच इज देयर inside the pores from where it goes out to the oscula. This pathway of water transport is helpful in food gathering, exchange and removal of waste. ये स्पोर्स या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस चीज़ में काम आता है? फूड की गैदरिंग में काम आता है, एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट. Coanocytes or collar cells line the spongosil and the canals. डाइजेशन कैसा होता है इनका? इंट्रासेल्युलर होता है, मतलब सेल के अंदर होता है. The body is supported by a skeleton made up of spinacles और spongin fibers. इनका जो skeleton होता है ये किसका बना होता है? Spongin fibers का बना हुआ होता है. Sexes are separate means they are hermaphrodite. Sorry, sexes are not separate means मेल भी वही उसी में प्रेजेंट होता है और फीमेल भी उसी में प्रेजेंट होता है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं hermaphrodite. Example, eggs and sperms are produced in the same individual. मीन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में एग भी प्रोड्यूस होगा और उसी ऑर्गेनिज्म में स्पर्म्स का प्रोडक्शन भी होगा. स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन. ठीक है. रिप्रोडक्शन कैसा होगा स्पॉन्जेस में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय फ्रैगमेंटेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल मीन्स बॉडी के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन. डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होगा, having a larval stage which is morphological distinct from the adult. Examples क्या है? पोरीफेरा के साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया.
द नेक्स्ट फाइलम इज सैलेंट्रेटा, जिसको हम स्निडेरिया भी बोलते हैं. दे आर एक्वाटिक एंड मोस्टली मराइन इन नेचर, सेसाइल और फ्री स्विमिंग. रेडियली इनकी सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है. इन एनिमल्स को हम स्निडेरिया इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर derived from the word snidoblast or snidocytes, which contain the stinging capsules or nematocytes. आपको यहाँ पे स्टिंग दिख रहा होगा, डंक जैसा दिख रहा होगा, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी. स्निडोब्लास्ट आर यूज फॉर एंकरेज, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म से एंकर करने में, अटैच होने में हेल्प करता है, डिफेंस में हेल्प करता है, और प्रे को कैप्चर करने में, शिकार को कैप्चर करने में हेल्प करता है. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनका, एंड दे आर डिप्लोब्लास्टिक. आपको डिप्लोब्लास्टिक का मतलब बताया था, क्या होता है डिप्लोब्लास्टिक? मीन्स डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म. दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग. डाइजेशन इनका एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंटरसेल्यूलर दोनों होता है. Corals have a skeleton composed of calcium carbonate. Corals किसकी बनी हुई होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है. It exhibits two basic forms, polyp and medusa. दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होते हैं इनके, polyp and medusa. Polyp जो होता है वो sessile होता है और cylindrical होता है, जैसे हाइड्रा होता है, एडेम्शिया होता है. और मेड्यूसा जो होता है उसका अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि फ्री स्विमिंग होता है. एग्जाम्पल like Aurelia or jellyfish. Those cnidarians which exist in both forms, जो दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एग्जिबिट करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस. ओके, एग्जाम्पल इज Aurelia, Physalia, Adamsia, Panatulia and Seafan. The next phylum is Ctenophora. Ctenophora को हम कॉमनली बोलते हैं सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज. दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, मराइन वाटर में इनका हैबिटेट होता है. सिमेट्री होती है इनकी रेडियली एसिमेट्रिकल. डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका. द बॉडी बेयर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट्स. यहाँ पे आपको एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये 8 पार्ट में डिवाइडेड होता है, 8 एक्सटर्नल रोज में, जिसको हम बोलते हैं कॉम प्लेट्स. ये किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में, मतलब मूवमेंट में हेल्प करता है. डाइजेशन कैसा होता है इनका? एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रासेल्युलर भी होता है. बायोल्यूमिनेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट. ठीक है, ये क्या करते हैं? लाइट को एमिट करते हैं, लाइट एमिट करते हैं. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट एमिट करते हैं उनको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेंस. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सेक्सुअल mediator and fertilization is both external and development is indirect. Example is Pleurobracia and Tenoplana. The next phylum is Platyhelminthes. They are dorsoventrally flattened and body and these are also called as flatworms. Flatworms क्यों कहते हैं? Because वो फ्लैट होते हैं स्ट्रक्चर में. दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. सिमेट्री कैसी होती है? बायलेटरल सिमेट्री होती है एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर. एसेलोमेट एनिमल्स विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, जो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं. सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस. Specialized cells called flame cells help in osmoregulation and excretion. इनके पास फ्लेम सेल्स होते हैं जो ऑस्मोरेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, मीन्स दे आर ऑल्सो हर्माफ्रोडाइट. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है. प्लानेरिया possess हाई रीजनरेशन कैपेसिटी. द नेक्स्ट इज एस्केलमेंथिस. एस्केलमेंथिस जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं और इनको हम राउंड वर्म्स भी बोलते हैं. ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, प्लांट्स एंड
एनिमल्स में। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री जो होती है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनके पास सूडो सीलम प्रेजेंट होती है, फॉल्स सीलम प्रेजेंट होती है, इसलिए ये सूडो सीलमेट एनिमल्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कंप्लीट होती है विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। एक्सक्रीटरी ट्यूब जो होता है वो, an excretory tube removes body waste from the body cavity through excretory pore. Sexes are separate, मतलब they are dioecious. Male and female are distinct. Both females are longer than the males. Fertilization is internal and development may be direct. The young one resemble the adult or direct. So students, till here I had explained you. We are going to continue the other phylums in next video. I hope you are well understood by this video. If any doubt is there, you can write in the comment section, and if everything is clear, then like the video. Thank you.